Bismillahirrahmanirrahim. This is your computer applications class. I'm your teacher, Dr. Usma Jamil. Today we are going to learn about input devices. In last lecture we had learned the basic computer model that was based on input, process and output. To supply input, if it wants to give input to the computer system, it is in need of a device. We had already discussed about input, so there is a brief introduction about it. Full data or instruction given to the computer, entered to the computer by the user is known as an input. वो डेटा, वो इंस्ट्रक्शन, वो आवाज़, वो कोई ऑडियो की फॉर्म में हो सकती है, कोई सिग्नल की फॉर्म में हो सकती है, कोई ग्राफिक्स हो सकती है, कोई रिटन इंस्ट्रक्शन हो सकती है, जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं, वो इनपुट कहलाती है. What are input devices? Input devices कौन से होते हैं? Any hardware, any tangible component जिसको टच किया जा सकता है. हार्डवेयर की डेफिनेशन क्या है? The tangible components, the components that has physical existence, जो कि इनपुट देने के लिए, डेटा एंटर करने के लिए, इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए हम कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच करते हैं, उनको इनपुट डिवाइसेस कहते हैं. So any hardware component that is used to enter data, programs, commands and responses into a computer are known as input devices. अब बेसिकली क्या है, ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट है. हार्डवेयर कंपोनेंट जो है उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? कीबोर्ड, माउस, डिजिटल कैमरा, वेबकैम, स्कैनर एक्सेट्रा. सो पहली अभी टर्म जो हमने डिस्कस की है, हार्डवेयर. व्हाट इज दैट? हार्डवेयर आर द फिजिकल कंपोनेंट्स, फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो बेसिकली वर्सटाइल इन नेचर होता है. ये आपका डिपेंड करता है कि कौन से प्रोग्राम्स आप यूज़ कर रहे हैं और उसके लिए किस टाइप की इनपुट आपको चाहिए, और उस इनपुट को कंप्यूटर में सप्लाई करने के लिए आपको कौन सा हार्डवेयर नेसेसिटी है, किस हार्डवेयर की ज़रूरत है. फॉर एग्जाम्पल, आपका माइक, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, स्कैनर, प्रिंटर, एवरी पार्ट विल बी considered as hardware because it has some physical existence. You can see it, you can touch it. The tangible components are known as hardware. We had discussed till yet input devices, hardware. So what is software? Software is basically a set of instruction. It is also known as programs of the computer system, जो कि हार्डवेयर को गाइड करते हैं, बताते हैं what to do and how to do. कि हार्डवेयर ऑपरेट कैसे किया जाएगा, हार्डवेयर ने कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, कौन सी जॉब परफॉर्म करनी है एक्सेट्रा. सो सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ components, set of instructions. Software is a set of instruction that tells the computer what to do and how to do. All components जिनको हम टच नहीं कर सकते, जो नॉन टेंजिबल होते हैं, उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. So what is the difference in hardware and software? Hardware are tangible components and software is your non-tangible components. As you can see the different components in your picture as well. So this is Windows as an example of your software. एक software का नाम है. The major topic is input devices, and input devices, input any instruction given to computer, input devices, the component, the hardware used to enter information into the computer system. So the first input device that is shown in your screen is keyboard. कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस जो कि क्या करता है, इनपुट सप्लाई करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में. अब इसके ऊपर बहुत सारी कीज बनी होती हैं जिनको हम प्रेस करते हैं, और जो हमारी डिजायर्ड इंस्ट्रक्शन है, डिजायर्ड डेटा है, वो कंप्यूटर पे टाइप हो जाता है. अब आपने क्या करना है, आपका बहुत सारा काम किसकी मदद से हो रहा होता है, आपके कीबोर्ड से हो रहा होता है. इट इज़ जस्ट लाइक योर टाइपराइटर कि हमने कुछ भी टाइपिंग करनी है उसके लिए हम कीबोर्ड्स यूज करते हैं. Keyboard, a board that is having a set of keys, and different keys are there to perform different functionalities. So this is the image, this is the picture of your keyboard. Next,
कीज ऑफ कीबोर्ड, हमारे पास कौन सी टाइप की कीज होती है? कीज आर द बटन्स दैट आर परफॉर्मिंग एन इंडिविजुअल टास्क, हर की एक स्पेसिफिक टास्क है। कीबोर्ड कीज जो है उसमें अल्फाबेटिक कीज होती है, न्यूमेरिकल कीज होती हैं, सिंबल्स होते हैं, फंक्शनल कीज होती हैं, एक्स्ट्रा कीज होती हैं। अब इसमें जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है सारी कीज का, दैट इज गिवन ऑन योर स्क्रीन। अल्फाबेटिक कीज जिसमें हमारे पास इंग्लिश के ए टू जी कैपिटल लेटर्स और ए टू जी स्मॉल लेटर टाइप करने की फैसिलिटी होती है। अगर आप गौर करें, आपके कीबोर्ड पे कैप लॉक होता है, आप उस कैपिटल लॉक को प्रेस करके करेंगे तो सारे कैपिटल लेटर्स टाइप हो जाएंगे। अगर आप उसको अनप्रेस कर देंगे तो आपके पास स्मॉल लेटर्स हो जाएंगे। न्यूमेरिकल कीज में हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, हमारे पास बेसिक डिजिट्स होते हैं, उसके बाद हम उसके कॉम्बिनेशन से डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर लेते हैं 0 to 9। उसके बाद हमारे पास सिंबल कीज होती हैं, जैसे डॉलर साइन हो गया, नंबर साइन हो गया, @ साइन हो गया, एटसेट्रा। नेक्स्ट टाइप होती है कीज की फंक्शनल कीज, जो कि हमारे पास डिफरेंट स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिजाइन फंक्शन होते हैं, और ये F1 से F12 तक होती हैं। जैसे F1 कोई हेल्प के लिए अक्सर लोग स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना है वो कहते हैं प्रेस F1, अगर आपने कुछ ओपन करना है प्रेस F2। इस तरह से आपकी डिफरेंट फंक्शनल कीज होती हैं जो कि F1 से F12 तक 12 कीज होती हैं। नेक्स्ट एक्स्ट्रा कीज में, एक्स्ट्रा कीज से मुराद एडिशनल कीज जो कि आपको डिफरेंट हेल्प दे रही होती है। लाइक आपने बैक स्पेस करना है, आपने पिछली कर्सर को बैकवर्ड मूव करना है, आपने एंड कर्सर को नेक्स्ट मूव करना है, एंटर प्रेस करते कंट्रोल, यानी आपने एक की से दो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है तो आप कंट्रोल की प्रेस कर लेते हैं, एस्केप जो कि आपको उस करंट स्क्रीन से दूर ले जाता है, डिफरेंट मेनी मोर। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ योर कीबोर्ड कीज। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंट, जैसे ये फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ मेरा कर्सर जो है इस वक्त मूविंग है, माय कर्सर इज मूविंग, सो व्हाट इज दैट कि ये पॉइंट कर रहा है समथिंग, समथिंग जो कि हाईलाइट कर रहा है, किसी चीज को पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस इज बेसिकली टाइप किसकी है? ये इनपुट डिवाइस की, क्योंकि हम इसकी मदद से इनपुट परफॉर्म करें। आपका जो माउस है आप देखते हैं, और व्हाई दीज आर यूज्ड टू कंट्रोल द पॉइंटिंग, ये पॉइंटर ऑन अ स्क्रीन, ये हमारी पॉइंटिंग नोटेशन जो है जिसको हम पॉइंटर कहते हैं। जैसे ये मेरा कर्सर, मैं इसको अपने टच पैड की मदद से ऑपरेट कर रही हूँ, आप इसको माउस की मदद से ऑपरेट करते हैं। सो पॉइंटिंग डिवाइसेस आर यूज्ड टू मॉनिटर द पॉइंटर ऑन अ स्क्रीन। दिस इज और पॉइंटर क्या चीज़ है? दिस इज अ स्मॉल सिंबल जो कि स्क्रीन पे मूविंग होता है। दिस इज बेसिकली एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो इसको कंट्रोल कर रहा होता है, आपके पॉइंटर को, एक स्पेसिफिक सिंबल को, ठीक है। अब आपने इसको क्लिक करने के लिए, डिफरेंट डायमेंशन में ले जाने के लिए, स्क्रीन की किसी साइड को हाईलाइट करने के लिए, स्क्रीन पे कहीं टाइप करने के लिए, आप वहां जाके कर्सर पॉइंटर को ले जाते हैं, वहां पे क्लिक कर देते हैं तो वो पॉइंट आउट हो जाता है। आप पॉइंट करते हैं, क्लिक करते हैं और ड्रैग कर लेते हैं। सो दिस इज द डिफरेंट वेज दैट हाउ यू आर यूजिंग योर पॉइंटिंग डिवाइस। सो बेसिकली पॉइंटिंग डिवाइसेस डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, और उसमें पहली टाइप कौन सी है? आपका माउस। माउस बेस टाइप क्या है? इनपुट डिवाइस है। और इनपुट डिवाइस किस टाइप का है? ये इसको हम पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कहते हैं, जो कि हमारे पॉइंटर को मेंटेन करता है। कीबोर्ड क्या करता है? डिफरेंट कीज की मदद से हमारी डिफरेंट एंट्रीज कराता है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज योर कीबोर्ड। अब ये माउस क्या है? दिस इज योर पॉइंटिंग डिवाइस, जो कि आपके पॉइंटर को कंट्रोल करे। ये किसी चीज शेप को सिलेक्ट करने के लिए यूज हो जाता है, किसी चीज को ड्रैग करने के लिए यूज हो जाता है, और किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए यूज हो जाता है। आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, किसी मेन्यू से कोई ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, आप किसी टेक्स्ट को कहीं मूव कर सकते हैं, आप अपने कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ योर पॉइंटिंग डिवाइस माउस। माउस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। हमारे पास मैकेनिकल माउस होते हैं, ऑप्टिकल माउस होते हैं, वायरलेस माउस होते हैं। वायरलेस यानी जिसके साथ वायर या कॉर्ड अटैच नहीं होती है। ऑप्टिकल जो डिफरेंट किसी आपकी स्पेसिफिक लाइट ओमेटिंग, उसमें कुछ पार्ट्स लगे होते हैं, वो एक लाइट या लेजर की मदद से ऑपरेट हो रहे होते हैं। जो मैकेनिकल डिवाइसेस होती हैं उसमें एक खास किस्म की रबर बॉल या मेटल सा होता है, जो कि उसको उसके पॉइंटर को अप एंड डाउन, राइट साइड ऑन लेफ्ट साइड पे मूव करने के लिए रोल करके हम उसे मूव करते हैं, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउसेस: मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस एंड वायरलेस माउस।
ऑप्टिकल से मुराद ही लाइट, यानी जो ऑप्टिक्स पे बेस कर है, जो लाइट के ऊपर बेस कर है, किसी लेजर की इमिटिंग से हम अपने पॉइंटर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। वायरलेस माउस जो होता है उसमें तार अटैच नहीं होती, एक स्पेसिफिक छोटी सी यूएसबी टाइप हमारा पार्ट होता है, उसको हम अपने कंप्यूटर के साथ अटैच कर देते हैं और उसकी सिग्नल्स के थ्रू हमारा माउस जो है वो हमारे कंप्यूटर के साथ ऑपरेट हो रहा होता है। इसमें दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक रेडियो ट्रांसमीटर कहलाता है और एक रेडियो रिसीवर कहलाता है, यानी वो थ्रू सिग्नल्स जो है वो ऑपरेट कर रहा होता है आपके पॉइंटर को स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंटिंग डिवाइस है, फर्स्ट हमने डिस्कस किया माउस, और माउस हैज थ्री टाइप्स वी हैड डिस्कस। द सेकंड टाइप ऑफ योर पॉइंटिंग डिवाइस इज joystick. अब joystick is not very much common these days. Specific, these are very successful in playing games. So this is not very good idea to use your joystick as a pointing device with your computer. So mostly people use it with your games. This is this is specific type of machine that is controlling the pointer on your screen. So it has a button on the top that is used to select the option. अब वो क्या करते हैं कि जो बटन होता है आपका वो डिफरेंट ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब डिफरेंट इंडस्ट्री में भी जॉयस्टिक्स का यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए जॉयस्टिक्स यूज कर लेते हैं, डिफरेंट रोबोट्स को मूव करने के लिए यूज हो जाते हैं। थर्ड टाइप ऑफ पॉइंटिंग डिवाइसेस ट्रैक बॉल। this is a matlab this is just like a mouse. This is not a mouse but just you can say upside down mouse ना। आपके जो माउस होता है उसके डाउनवर्ड जो है बॉल अटैच होता है, जो प्रीवियस माउसेस थे ना जिनको हम मैकेनिकल माउस कहते हैं। तो दिस इज यूज सिमिलरली टू माउस। द ट्रैक बॉल इज फ्रीक्वेंटली अटैच्ड टू और बिल्ट इन टू द कीबोर्ड। अब हमारे पास जो कब कुछ ऐसे कीबोर्ड आते थे कि जहाँ पे हमारे ये जो है ट्रैक बॉल जो है वो अटैच होती थी अक्सर कीबोर्ड्स पे ना। एज यू कैन सी कि ये छोटा सा एक ट्रैक बॉल जो है वो कीबोर्ड के दरमियान में अटैच है। एक ऐसा था कि जस्ट लाइक माउस जो है उसको कहते हैं अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन से मुराद ये है कि माउस की फंक्शनैलिटी के थोड़ा सा ऑपोजिट इसको कहा जा सकता है, लेकिन ये है काम माउस की तरह करता है, जो कि अटैच बिल्ट इन होता है कीबोर्ड में, या फिर हम इसको फ्रीक्वेंटली अटैच कर सकते हैं, दो तरह से यूज हो सकता है। इसको कम स्पेस चाहिए होती है क्योंकि ये आपके कीबोर्ड में छोटा सा एक डिवाइस अटैच हो जाता है, एक छोटा सा बटन अटैच हो जाता है। सो इट इज़ नॉट इन नीड ऑफ अ लॉट ऑफ स्पेस जिसको आप ऑपरेट कर सकें। लेकिन इसका भी ऑपरेट जब हम माउस और कीबोर्ड यूज कर रहे होते हैं तो ट्रैक बॉल हमारा यूजुअली एज कम्पेयर टू अदर इनपुट डिवाइसेस एंड पॉइंटिंग डिवाइसेस का यूटिलाइजेशन कम होता है। फोर्थ टाइप ऑफ योर इनपुट डिवाइस इज टच पैड। टच पैड आपके सारे लैपटॉप्स में टच स्क्रीन पे आप इसको बहुत अच्छा से यूज़ कर सकते हैं। टच पैड हर एक स्टूडेंट के पास इस वक्त लैपटॉप्स है। वहाँ पे आपके इनपुट को कंट्रोल करने के लिए, आपकी पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए, आपके कर्सर को कंट्रोल करने के लिए जो पॉइंटर होता है that is done by the input device touch pad. बेसिकली ये लैपटॉप कंप्यूटर्स में अटैच किए जाते हैं, ठीक है, एंड बट ये दोनों के साथ यूज़ हो सकते हैं फॉर योर डेस्कटॉप कंप्यूटर एज वेल। अब ये क्या करता है, ये यूज़र की फिंगर की मूवमेंट के अकॉर्डिंग काम करता है। ये हमारी फिंगर के मूवमेंट को सेंस करता है और उसके अकॉर्डिंग जो है, अगर हम राइट साइड मूव करें तो वो पॉइंटर को, कर्सर को उसके अकॉर्डिंग मूव करता है। Fifth type of your pointing device is touch screen. In your mobile phone, everyone is using touch screen mobile phone. So you are very much clear about it, ना? So these are pressure sensitive screens. अब हमारी जो touch screen होती है वो pressure है, वो हमारी finger के pressure के according work कर रही होती है। जब हम move करें smoothly तो वो pointer को highlight करें, जब हम एक दफ़ा click करते हैं अपने फिंगर के थ्रू तो वो उस प्रेशर को सेंस करता है। वो हमारे डिफरेंट टच को, प्रेशर हमारे टच से पैदा होने वाले प्रेशर के अकॉर्डिंग जो है स्क्रीन के ऊपर वर्किंग करता है। सिक्स टाइप ऑफ डिवाइस इज योर डिजिटल पेन। इट इज़ अ बैटरी ऑपरेटेड। डिजिटल पेन में ये होता है कि आपके पास अक्सर स्क्रीन के साथ कुछ पेन अटैच होते हैं, यानी आप उनकी मदद से कुछ भी राइट कर सकते हैं, कुछ भी कमांड दे सकते हैं, ठीक है। आप अपने हैंड रिटन नोट्स जो है उनको यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आपके पास डिजिटल पेन जो है उसकी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। आपके पास ये बेसिकली एक यूएसबी के साथ जो है ना अटैच क्रेडल मिलता है आपको, उसको आपने क्या करना होता है, हैंड रिटन नोट्स को अपलोड करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये अटैच होता है यूएसबी। दिस इज द एब्रीविएशन यूनिवर्सल
सीरियल बस इसके साथ अटैच करने के बाद आप अपने पर्सनल कंप्यूटर के साथ कोई भी हैंड रिटन नोट्स और इन चीज़ों को अटैच कर सकते हैं। दिस इज इट लुक्स लाइक अ रेगुलर बेल पॉइंट पेन, ठीक है। ये इस कैन बी यूज्ड रिक्वायर्ड स्पेशल डिजिटल पेपर। आप ये नहीं कर सकते कि आप डिजिटल पेन को किसी भी सरफेस के ऊपर किसी तरह से भी यूटिलाइज करें। आपको स्पेसिफिक डिजिटल पेपर चाहिए होता है कि जो अपने डिजिटल नोट्स को कैप्चर कर सके। स्पेसिफिक पेज ऑफ डिजिटल पेपर जो कि आप स्पेसिफिक स्टिकी नोट साइज में अवेलेबल होते हैं। तो दिस इज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, नॉट अ कॉमन यूज for all users. Special type of users use it for to capture their hand. मसलन आपने कोई मैप ड्रॉ करना है, आपने कुछ ड्राइंग अपनी बनानी है, तो आपको स्पेसिफिकली उसको सरफेस को स्पेसिफिक डिजिटल पेपर को बाय करना होगा ताकि आप डिजिटल पेन को यूटिलाइज कर सकें। Light pen, a light sensitive stylus wired to a video terminal used to draw pictures, select menu options. This is again another thing. Light pen जो कि आपके पास specific आपने purpose होता है आपका, ये like you want to draw pictures, you want to select different menu option, तो आपके पास एक wired लाइट सेंसिटिव स्टाइलस होता है। ये एक पेन होता है जो कि लाइट पे बेस पे लाइट इमिटिंग जो आपके पास रेज होती है उनके ऊपर काम करता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर टू पॉइंट आउट ऑन द स्क्रीन और इट प्रेसेस द पेन बटन टू मेक कांटेक्ट। आप क्या करते हैं कि आप पेन की मदद से स्क्रीन के साथ कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बार बार आपकी स्क्रीन की जो पिक्सल्स होती है, हमारी जो ये सारी स्क्रीन है ना, इट इज मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स। तो आप जब लाइट पेन यूज कर रहे होते हैं तो पेन जो है वो सेंस करता है लाइट को, और फिर जो पिक्सल है वो उसके अकॉर्डिंग, यानी मेरी पूरी स्क्रीन जो है ना वो छोटे 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 डॉट्स पे बेस करी है, उस डॉट को पिक्सल कहते हैं। तो जब हम ये वर्किंग कर रहे होते हैं तो जब लाइट पेन जो है वो पहले लाइट को सेंस करता है और फिर अगेन पिक्सल जो है वो इल्यूमिनेट की जाती है उस लाइट के थ्रू। तो इस तरह से इसकी वर्किंग होती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ योर डिवाइस इज, पहला हमने कीबोर्ड देखा, दूसरा हमने पॉइंटिंग डिवाइसेस देखा है। अब थर्ड टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस आर बायोमेट्रिक डिवाइसेस। अब जब हम बात करते हैं कि अब हमारी अटेंडेंस जो है वो बायोमेट्रिक होगी, तो दिस इज अ डिवाइस दैट मेजर्स सम बायोलॉजिकल फंक्शन। बायोलॉजिकल फंक्शन से क्या मुराद है, जो हमारी इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं ये उनके ऊपर वर्किंग करता है। फॉर एग्जांपल जो मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं, अब जो मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं मैं उनकी ऊपर उनको सेंस करने के लिए जो डिवाइस है, अब जैसे मैंने अपना थंब लगाया है, आप में से हर बच्चे ने एटलीस्ट आईडी कार्ड बनाते हुए थंब स्कैन किया होगा, अपने अपने बैंक अकाउंट इन ओपन कराते हुए आप थंब स्कैन करते हैं। तो थंब स्कैन इज अ टाइप ऑफ बायोमेट्रिक डिवाइसेस जो कि मेजर करता है किसी बायोलॉजिकल फंक्शन को। ये जो हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं ये हमारे बायोलॉजिकल फंक्शन है, एंड एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स। तो इस टाइप के डिवाइसेस जो कि हमारे बायोलॉजिकल ट्रेड्स को, बायोलॉजिकल फंक्शन को मेजर करते हैं और उसकी इनपुट हमारे सिस्टम को सप्लाई करते हैं। सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस। अब हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स किस टाइप की हो सकती है, वॉइस रिकग्निशन हो सकती है, हमारे फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं, हमारा फेस के फेशियल एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, हमारा वेट हो सकता है, हमारी पिक्चर्स हो सकती हैं, हमारी रेटिना आंख आंख के हमारे डिफरेंट पैटर्न्स है, उनकी मदद से जो डिवाइसेस इन चीज़ों को मेजर करते हैं उन्हें बायोमेट्रिक डिवाइसेस कहते हैं। Fourth type of input devices are microphones or headphones. Both are input devices which are related to audio input, जिसमें से हमारी जो है वॉइस से रेलेवेंट जो डिवाइसेस है। अब इस वक्त जो है मैं हेडफोन्स या माइक्रोफोन यूज कर रही हूँ ताकि मैं अपना लेक्चर, अपनी आवाज जो है वो अपने कंप्यूटर सिस्टम में सप्लाई कर सकूँ। एट द सेम टाइम मेरी जो आवाज आप सुन सकते हैं, आपके पास एक आउटपुट डिवाइस है जो कि आपके सिस्टम में मेरी आवाज को प्रोसेस करने के बाद जो चीज जो आपको सप्लाई दे रहा है, जिससे आपके कान सुन सकते हैं मेरी आवाज को। सो राइट नाउ microphone is my input device that is used to take audio input and it supplies this input to the computer system. So if you want to interact, you are in need of, if you want to listen music, speaker will serve as an output device, ठीक है, microphone will serve as an input device. The fifth type of input device is digital camera.
इट इज़ यूज टू टेक पिक्चर्स। आप अपने डिजिटल कैमरा को अटैच कर देते हैं कंप्यूटर्स के साथ और फिर वहाँ से आराम से अपनी पिक्चर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो दिस इज़ एन इनपुट डिवाइस। अगर मैं डिजिटल कैमरा को अटैच करके अपने कंप्यूटर को पिक्चर की इनपुट सप्लाई कर रही हूँ, सो माई डिजिटल कैमरा इज़ नाउ सर्विंग एज एन इनपुट डिवाइस। ये लाइट सेंसिटिव चिप के अकॉर्डिंग काम कर रहा होता है, जो कि कैप्चर करता है हमारे इमेजेस को, हमारे पिक्चर्स को। और ये इमेजेस और पिक्चर्स जो हैं, जब हम कंप्यूटर के साथ इसे अटैच करके इंसर्ट करते हैं, ताकि ये डिफरेंट इनपुट को जो इसके साथ अटैच की गई हैं कंप्यूटर सिस्टम में ट्रांसमिट कर सके। डिजिटल स्कैनर, स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस जो कि हमारे डॉक्यूमेंट्स को, हमारे इंपॉर्टेंट फाइल्स को हम स्कैन करके उसकी पिक्चर लेके, दिस इज जस्ट लाइक अ फोटोकॉपियर। सो दिस इज जस्ट लाइक अ फोटोकॉपियर कि जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपनी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को, अपनी डिफरेंट फाइल्स को, अपनी डिफरेंट पिक्चर्स को स्कैन करके, उनकी कॉपी करके हम अपने कंप्यूटर फाइल में सेव कर लेते हैं हमारे, ताकि अगर फर्दर किसी टाइम पे हमें जब जरूरत होती है तो हम उसका प्रिंट आउट लेके उसकी हार्ड कॉपी यानी प्रिंटेड कॉपी भी जनरेट कर सकते हैं। दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ योर डिजिटल स्कैनर। आज हमने डिस्कस किए हैं इनपुट हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड इनपुट डिवाइसेस। We had different types of input devices, that was including keyboard, pointing devices, biometric devices, microphone, headphone, digital camera and digital scanner. सबको अच्छे से समझ आ गया? जी मैम। दिस इज वेरी नाइस। अच्छा, आज की अच्छी बात, अपनी जिंदगी में कोशिश करें कि लोगों की जिंदगियों में आसानियां पैदा करें। लोगों की जिंदगी में अगर किसी को खुशी नहीं दे सकते तो एटलीस्ट आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ नहीं मिलनी चाहिए। एटलीस्ट किसी के लिए नेगेटिव ना बने। अगर खुशी नहीं दे सकते हैं तो किसी के लिए तकलीफ ना बने और आसानियां पैदा करें जितना हो सके। ये भी किसी की जिंदगी में आसानी है कि आपकी वजह से उसकी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं हो रही है। ये भी किसी की जिंदगी में बहुत बड़ी आसानी है। खुश रहें और खुश रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।